think कि whatever thing can be done at FMCG, same can replica to healthcare. Ensuring profitability, and profitability is nothing wrong. But out of 10 patients, 8 patients feel cheated. तो यहाँ पे तो हेल्थ केयर सिस्टम ही फ्लॉड हो गया. कहाँ पे हॉस्पिटल एज अ ब्रांड बड़ा बनना चाहिए और कहाँ पे डॉक्टर एज अ ब्रांड बनना चाहिए. लोग वॉकाथॉन करते हैं तो फिर हर ब्रांड वॉकाथॉन कर रहा है. कोई साइक्लोथॉन कर रहा है तो सब साइक्लोथॉन कर रहा है. जो मैंने 30 इयर्स में लर्न किया है, दैट कैन बी लर्न इन 2 इयर्स. उनको 30 साल नहीं लगेंगे उस चीज़ को करते. 50 लाख रुपीस के रेवेन्यू से और 500 करोड़ की वैल्यूएशन तक कंटेंट जो खुद ब खुद वायरल हो. वी आर टॉकिंग ऑफ समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग. Welcome to Thursday Thought Leaders with Harbinder Narula on BW Healthcare World. Today's conversation is an important aspect of Indian healthcare industry where we are talking about the intersection between trust, brand, leadership as well as patient expectations. My guest today is Baldev Raj, someone who's built and scaled a urology practice for a large institution and today has founded and leading Prius Communications, where he is creating a blend of creativity and clarity on how narratives around healthcare institutions are told in the form of storytelling. Welcome Baldev to BW Healthcare World. Thank you very much, Mr. Narula, for having me here. Let's begin with trying to understand, because your experience spans two aspects of healthcare. You know, it's two sides of the desk, which is an healthcare institution scaling it from scratch to becoming a very large chain of institutions. And on the other side, now you're serving the healthcare industry with marketing communications. What change have you seen? How do you think the healthcare industry has evolved with patients' expectations? And how does it translate to the communication and healthcare communications between what you saw 25 years ago and what you are experiencing today? Very interesting and very good question on this. Why? Because when I started very early in 2000s, leading the healthcare, one of the player now who's like very leading in urology, laparoscopy and general surgery, and worked with across spectrum with the multi-speciality with other players, I realized that people think कि marketing, communication or the brand for that matter, it actually different from what the other people do it. As in, if I elaborate a bit in that, people think कि whatever thing can be done at FMCG, or I would say Coke, Pepsi or the other players, same can replica to healthcare, but it is not like that. Actually, उन सब segments में you can run that 1+1 scheme, a new activities into it, but healthcare you can't say it, Narula साहब, that की kidney free निकाल लेंगे. You can't. It's a trust. It's a trust not about on the brand only, but it is about doctor, it is about their credibility into market, their behavior towards the patient, their empathy towards it, and how it can communicate in your communication, that plays a role. So trust plays a both side of the role, about the doctor, about the brand, and about the institution behavior also. Got it. Baldevji, you know, if you were to look at when you were running a healthcare institution, urology brand, setting up a hospital, expanding from one hospital to I think about 14, 15 hospitals? Yeah, that time it was 24, 25. 25 hospitals. And then you were trying, you know, everybody, when you're looking at marketing, there is ROI that you have to look at, footfalls that you're looking at. At the same time, like you said, it is very unique because it's not an FMCG game. आपको empathy भी show करनी है, you have to be seen as doing the right thing as well.
What aspect of marketing did you experience that became a learning for you that has stayed, which has become a fundamental of what and how you do things today? Okay, that's interesting. After spending my 14 years into the other side of the table, and I realized I have worked with every communication partner into the industry from top to bottom. Right. And my challenge and my problem statement was I used to ask something else from them. So let's say I used to ask A from them and they used to deliver me B because they wanted to serve with their services. Let's say somebody is a PR agency, somebody is a digital, somebody is a creative, somebody is a advertising company. They always wanted to do something कि मेरी सर्विसेज आपके पास चले जाए, बिकॉज उनके भी अपने टारगेट्स हैं. यस, उनके भी अपने टारगेट्स थे, उनके भी अपनी चीज़ें थी. बट क्या वो जेन्युइनली उस ब्रांड को, उस डॉक्टर को या उस इंस्टीट्यूशन को सर्व कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत मेजर एस्पेक्ट था उसका. एंड देन एट द सेम टाइम आई फील कि अगर हेल्थ केयर का राइट कम्युनिकेशन आप करेंगे और आपने कुछ गलत कम्युनिकेट कर दिया फॉर दैट मैटर, और पेशेंट उस एक्सपेक्टेशन के साथ आपके पास आ रहा है, तो रादर देन क्रिएटिंग अ ब्रांड और रादर देन क्रिएटिंग अ रेपुटेशन, वो डैमेज करके जाएगा. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्रांड्स ईथोस, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उनका एक्चुअली डीएनए है क्या और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है. फॉर दैट मैटर आज की डेट में देर आर लॉट ऑफ फंडिंग्स हैपनिंग, पी आर इन्वेस्टिंग लाइक एनीथिंग इन टू इंडियन मार्केट. क्या उनका फोकस इस साल फंड जनरेशन पर है? क्या उनका फोकस इस साल रेपुटेशन मैनेजमेंट पर है? क्या उनका इस साल या किसी ब्रांड के साथ बीइंग हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल इज अ सॉफ्ट टारगेट फॉर देम, राइट? किसी भी चीज़ में, बिकॉज एज एन इंडस्ट्री, एज एन बिहेवियर, आप और हम भी कहीं पे बहुत अच्छी चीज़ होगी तो शायद उसका रिप्लाई या उसका कमेंट कहीं नहीं करेंगे. बट अगर कोई गलत चीज़ हुई है या दे फेल्ट cheated or bad about it, they definitely go and do something on the GMB, Facebook or the anywhere else. Actually वो trust factor manage करने की part है. अगर वो rightly नहीं हमने address किया है तो वो कहीं और जा सकता है. तो I realize कि बहुत बड़ा gap है health care को समझने के लिए. People understand from the point of view जहाँ पे वो लोग उसे FMCG या किसी और इंडस्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं, बट हॉस्पिटल्स या हेल्थ केयर को वैसे आप ट्रीट नहीं कर सकते हैं. दैट्स वेयर आई रियलाइज कि नो, देयर इज़ अ बिग गैप जहाँ मुझे कम्युनिकेशन को समझने की ज़रूरत है और उसे कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट आई वांट टू ऐड कि डॉक्टर्स कंटेंट लिख रहे हैं या उनकी कितनी जो मेन डॉक्टर हैं या तो वो ओटी में बिजी है या ओपीडी में बिजी है, दे डोंट हैव टाइम बिकॉज दे नीड टू सी पेशेंट. बट क्या हमारी कम्युनिकेशन टीम उनका पेन कम कर पा रही है कंटेंट में या अंडरस्टैंडिंग दैट कंटेंट? यू ब्रॉट अप अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. यू नो, जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं, स्पेशली हेल्थ केयर के अंदर, आपने बात करी कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड द इंस्टीट्यूशंस ईथोस, राइट, एंड देन ट्राई टू डिलीवर ऑन दैट ईथोस एंड द वैल्यू सिस्टम्स. जब हम हेल्थ केयर मार्केटियर हैं, ठीक है ना, तो दो वर्ड्स मेरे को लगता है कि डिफाइन करती हैं हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी. वन इज वैल्यू बेस्ड. Second is, when I'm talking about value based, I'm talking in terms of value systems, right? Second is responsible advertising, responsible marketing, because शायद वो institution आपसे ROI based activity मांग रही है, लेकिन क्या आप authenticity में believe करते हैं? क्या आप authentically उनको समझाएंगे कि हमें ये करना है और ये चीज़ें avoid करनी है? How do you balance between the two? यू नो, बिकॉज जैसे आपने बोला कि अभी पी इन्वेस्टेड हॉस्पिटल्स हैं, उनकी गलती नहीं है, इट्स नॉट दैट दे आर रॉन्ग, बट द माइंड सेट ऑफ समवन हु कम्स फ्रॉम दैट पी बैकग्राउंड इज ऑलवेज अबाउट फाइनेंशियल ROIs, right? Building the valuation of the organization, ensuring profitability, and profitability is nothing wrong in healthcare. Whereas a similar institution which has been started by a doctor, यू नो, एक डॉक्टर है, उन्होंने ग्रो करा और वो बड़ा हॉस्पिटल बन गया है आज की डेट में, उनका थॉट प्रोसेस डिफरेंट है. सो एज अ मार्केटिंग एजेंसी, एज अ मार्केटिंग पर्सन, व्हाट डू यू थिंक should be done so that we can ensure
authenticity while we are serving these institutions and while we want closures, right? तो और marketing भी करनी है, तो यहाँ पे कहाँ पे value based and responsibility हम लेके आ सकते हैं? So I'll give you two of the examples. As you rightly mentioned, a thought process of a person जो डॉक्टर हैं and entrepreneur convert हुए हैं, and the second person who is backed up by the financial institutions or financial fundings and the PE and the other players. Challenge आता है जब because डॉक्टर का core generally if you see तो it's a treating the patient. Correct. It's a well-being with the patient. They are good at. I am not saying Outcomes great. Yes, I am not saying कि वो अच्छे मार्केटर नहीं हो सकते हैं या नहीं होते हैं. उनके पास उतना टाइम बैंड नहीं है जो कि वो मार्केट पे फोकस कर सकें या मार्केटिंग पे फोकस कर सकें. वेयर एज इंस्टीट्यूशन बैकडअप, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैकडअप या PE बैकडअप पीपल, दे हैव अ टीम मेंबर्स. तो अगर आप किसी बड़े प्लेयर के पास जाएंगे तो उन्हीं के मार्केटिंग टीम में एक मार्केटिंग हेड होगा, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर होंगे, एक ब्रांड हेड होगा, एक कॉपकॉम हेड होगा, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड होंगे, एंड देन मे बी द डिजिटल हेड एंड द अदर वर्टिकल और BTL गाय और समबडी. वेर एज सिंगल यूनिट के लिए करना थोड़ा टफ होता है बिकॉज ROI नहीं निकलेगी. बट ऑन द नट शेल इफ आई आंसर दिस, एक थॉट प्रोसेस क्लियर होनी चाहिए. वो थॉट प्रोसेस है कि मार्केटिंग इज नॉट द एक्सपेंस, इट्स द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लेंगे बिकॉज ब्रांड बनेगा तो वो लॉन्ग टर्म ROI भी ड्राइव होगा. अगर मैं एंड ऑन द अदर हैंड आपको ऐसा भी नहीं होना चाहिए बिकॉज क्योंकि आप फाइनेंशियल आपको बैकअप मिला है तो आप एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू आर डूइंग इट, राइट. वी नीड टू अंडरस्टैंड, अगेन आई कम बैक टू माई ओरिजिनल थॉट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस साल का या नेक्स्ट 3 साल का ऑब्जेक्टिव क्या है. फॉर अ सिंगल स्पेशलिटी और फॉर अ सिंगल हॉस्पिटल समथिंग डिफरेंट, फॉर अ चेन ऑफ द हॉस्पिटल इट्स डिफरेंट. तो आई बीन ऑन दोज शूज़ जब मेरे साथ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर थे और हमारा फोकस एक्सपेंशन पे बहुत ज़्यादा था कि नहीं, वी नीड टू हैव 10 हॉस्पिटल्स इन दिस ईयर, हमें 10 अस्पताल खोलने हैं बिकॉज दैट वॉज आर टारगेट. बिफोर दैट आर टारगेट वॉज नो, आप ROI कैसे बिल्ड करते हैं फॉर द सिस्टम्स, कैसे वेलबींग बेटर होती है. तो ऑब्जेक्टिव से पूरी गेम आपकी चेंज हो जाती है. बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ट्रिगर ऑफ होता है विद दिस वर्ड ऑब्जेक्टिव, राइट. मार्केटिंग is a need of the hour for every industry, right? But when it comes to healthcare industry, is marketing truly the objective of an organization? And if so, what is the objective of marketing, or what should be the objective of marketing for a, say, a hospital, right? Because the moment we are saying that, you know, it is ROI driven, whether it is in terms of footfalls of patients, whether it is in terms of ensuring profitability, because which is an outcome of footfalls, both are conflicting with the code of ethics of the healthcare industry, right? Because you cannot solicit patients, right? So what should truly be the objective of marketing for a hospital so that they don't tread on the wrong path? Good enough. So in this, I'll explain like this. What is the role of marketing in hospital? The role of a marketing in the hospital is not to narrate or communicate something wrong, but or boasting about the brand कि जो उन्होंने किया भी नहीं है, and you are claiming wrong about it. But आपके डेली रूटीन में आप ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो कि यूनिक है, जो कि डिफरेंट है. अगर आपको हेल्थ केयर बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग है, दैट्स वेयर द पॉइंट इज. इफ़ यू आर अ FMCG गाय, इफ़ यू आर द XYZ इंडस्ट्री गाय, हेल्थ केयर की कोर अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उसके कम्युनिकेशन को डेवलप करने में या कम्युनिकेट करने में उन्हें वो ट्रीट करेंगे एज एन कमोडिटी. वेयर एज यहाँ लाइफ इन्वॉल्व है. तो लाइफ जब इन्वॉल्व है, आपने बहुत सारी अच्छी चीज़ें की होंगी. मान लो बहुत अच्छा कोई केस किया होगा, मान लो बहुत अच्छा कोई टेक्नोलॉजी अपब्रिंग की होगी जिससे कॉस्ट में इफेक्टिवनेस आ रही है पेशेंट के लिए.
मान लो उसके ट्रीटमेंट के इफेक्टिव में आ रही है, मान लो अब लेजर्स आ गए, उसके बाद में रोबोटिक्स आ गए, उसके बाद अब AI इज़ द वर्ल्ड इन टू, इफ़ दिस इज़ हेल्पिंग of the patient or and the brand in the cost effectiveness. I'll give you an example कि अगर लेज़र से ट्रीटमेंट हो रहे हैं या लैप्रोस्कोपिकली ट्रीटमेंट हो रहे हैं या बाकी किसी, जो स्टे 7 दिन का था, 10 दिन का था, वो 24 आवर्स का रह गया और वो डे केयर में कन्वर्ट हो गया. इफ़ इट इज़ दिस एंड हेल्पिंग पेशेंट ऑल्सो एंड द ब्रांड ऑल्सो, तो पेशेंट को हेल्प कर रहा है बिकॉज वो जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं, जल्दी रिकवर हो रहे हैं. हॉस्पिटल को बेनिफिट कर रहा है बिकॉज पर बेड टर्नओवर फास्ट हो रहा है, बिकॉज एक ही नाइट में दे आर चार्जिंग पर बेड ₹1,00,000 और 70,000 और वट एवर, बट नेक्स्ट डे ही सर्जरी दूसरी कर पा रहे हो. एंड एज वी बोथ ऑफ नो एंड द इंडस्ट्री नो कि वी हैव अ ग्रेट शॉर्टेज ऑफ अ मैन पावर, डॉक्टर्स एंड द पैरामेडिक्स. इफ वी कैन ट्रीट faster, quicker, effectively to the people, it makes sense for both the people. मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो मेरे को समझ आ रहा है कि मार्केटिंग एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग फॉर अ हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, स्पेसिफिकली हॉस्पिटल, is more focused on communicating the capabilities that the institution has, differentiation that it brings, and informing what all facilities the institution has, so that people are aware as to where to go to when there is a need that arises, right? And in that, let's say there are different models. So single speciality, multi speciality, then there are super multi speciality, tertiary care, then the quarterly care and lot of other. But हर डोमेन के लिए एक अलग सेगमेंट है. देर आर सेगमेंट्स ऑफ जहाँ सिंगल स्पेशलिटी आज की डेट में जब कंज्यूमर है या पेशेंट है, वो लोग पर्टिकुलरली ऐसा देखते हैं कि मैं सिंगल स्पेशलिटी, मतलब आज ऐसा हो गया है कि हमने सर्च किया, देखा, एंड पीपल डोंट गो टू दी जर्नल मेडिसिन डॉक्टर, दे जनरली गो टू दी स्पेसिफिक पीपल. मुझे पेन है, नी में पेन है, समथिंग है, एंड आई विल गो टू ऑर्थोपेडिक. अब वो अवेयरनेस उन्हें आएगी कहाँ से? वो अवेयरनेस उन्हें आएगी आपके कम्युनिकेशन से, वेदर इट इज़ इन टू मार्केटिंग स्पेस और दी अदर. हाँ, अगर हम उसका थॉट प्रोसेस राइटली सेल्स रख रहे हैं, देन इट इज़ अ चैलेंज, बिकॉज हम फिर उसके बिल्कुल ऐसे सेगमेंट पे मूव कर रहे हैं जहाँ पे हम मनी की बात करें. बट पेशेंट्स को रिक्वायरमेंट है, बहुत बड़ा बेस ऑलरेडी अवेलेबल है, राइट. बट राइटली ट्रीट करना और राइटली कम्युनिकेट करना इज द मार्केटिंग कोर, व्हाट आई फील. Some kind of a perception gap that exists in the healthcare industry, which we are trying to serve through marketing. You know, क्या hospital perceive कराना चाहता है in the minds of its target audience versus what is it that the people perceive about the hospital or a healthcare provider. Is there a gap that exists today which needs to be bridged? Absolutely. What is it? So I'll give you an example and I'll quote by the studies. So there are studies. एक study है, I'm not remembering the exact study, but there's a study happened with the journal, one of the journal, international journals, done on the India, that out of 10 patients, 8 patients feel cheated in Indian market, and they feel कि हमसे overly charged हो रहा है, right? Because they are not the healthcare driven people, और वो उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. बट एंड ऑफ द डे हॉस्पिटल ने राइट चीज़ की, राइट चीज़ मैंने उनको बताई, ट्रीटमेंट भी ठीक हुआ, बट दे आर फीलिंग चीटेड. देन दिस इज द गैप, वन. नंबर टू, सिमिलरली देर आर स्टडीज वेयर पीपल थिंक, इनफैक्ट देर आर स्टडी कि जो डॉक्टर्स ये मानते हैं कि हमारे पास कॉरपोरेट से भी प्रेशर होता है. इट इज़ स्टडी अवेलेबल कि हमारे पास प्रेशर है इस सेगमेंट का कि हम कैसे बेटर कन्वर्जेंस करें फ्रॉम दी ओपीडीज टू आईपीडीज, राइट. बट माय पॉइंट इज कि ओपीडीज टू आईपीडीज, अब ये प्रेशर क्यों है? लेट्स गेट इनटू दैट. तो जनरली हॉस्पिटल जब सेटअप करते हैं तो एक हॉस्पिटल को सेटअप, इफ़ आई टॉक अबाउट अप्रॉक्सीमेटली एक 400-500 बेडेड हॉस्पिटल को सेटअप करने के लिए
you have to have investment of a 1000 crore rupees kind of a thing, or 800 to 1000 depending on the geography, market and everything, जिसमें बहुत बड़ा component है infrastructure का, land cost, making and everything. अब किसी investor ने आप में invest किया है, 1000 करोड़ लगाए हैं, they need faster returns because they want to make money out of it. But the point is, अब इसमें next step क्या होता है कि जो teams हैं वो डॉक्टर्स को जब हायर करते हैं तो दे वांट टू लुक इनटू द मार्केट कि अच्छा किस डॉक्टर की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस है, राइट? कौन से डॉक्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस है और कौन से डॉक्टर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में कन्वर्ट करते हैं. तो आई गेट इनटू द सेकंड स्टेप, बट फर्स्ट स्टेप इज कि वो डॉक्टर्स जिनके पास प्रैक्टिस हाई है, अब ये डॉक्टर को भी वो हायर कॉस्ट पे एक्वायर करेंगे, राइट? वेयर एज आई फील कि इसका सोल्यूशन हो सकता है या इसको कम्युनिकेट राइटली कर सकते हैं. इफ़ द पर्सन इज क्लिनिकली राइट, तो ये काम तो मार्केटिंग का है कि उसकी क्लिनिकल एक्सपर्टी को वो कम्युनिकेट करे, वो कितना अच्छा ट्रीट करता है ये कम्युनिकेट करे, या किसी और सेगमेंट में इंस्टीट्यूशन कितना सही एथिकल प्रैक्टिस करता है ये कम्युनिकेट करे. इफ़ दिस इज़ द गैप कि एथिकल प्रैक्टिस में गैप है उसके साथ, या एग्जाम्पल के तौर पे पेशेंट डाउट में है कि मैं चीटेड हो जाऊंगा या मेरा राइट ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, देन देयर इज़ अ गैप. अनदर गैप, हॉस्पिटल के अगेंस्ट आप देखेंगे, कहीं आपने देखा होगा कि डॉक्टर्स को बहुत सारी मार्केट में उनके साथ में हाथापाई की, उनको कुछ बोल दिया, वायलेंस हो गए एंड ऑल दैट. व्हाई इट इज़ हैपनिंग? बिकॉज दे हैव बीन नॉट कम्युनिकेटेड राइटली. इफ इट इज़ राइटली कम्युनिकेटेड, then it will be sorted to some extent. I totally agree with you because I think एक uncertainty जोन सी होती है, that kind of creates a rift between what they were expecting versus what reality was there, especially when it comes to what they were expected to pay or what the outcome was expected. But I want to ask you one question based on what you just said. You mentioned that there is a need to convert from OPD to IPD. Is this an objective that is contradictory to the service that you need to provide? Because अगर आपके मतलब एक टारगेट बन गया कि कौन सा डॉक्टर सक्सेसफुल है क्योंकि वो कितना कन्वर्जन कर लेता है, तो यहाँ पे तो हेल्थ केयर सिस्टम ही फ्लॉड हो गया. एग्जैक्टली. तो पॉइंट मैं यहीं इसी पॉइंट पे तो मैं आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी देता हूँ नुरुल्लाह साहब. हाउ डॉक्टर ट्रीट्स, ऑल्दो डॉक्टर डोंट वांट टू डू दैट, पेशेंट भी उसमें सफ़र कर रहा है, डॉक्टर भी वो नहीं करना चाहता है, बट क्योंकि इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू, तो आई टेल यू हाउ इट इज हैपेंड. So do you think that PE investing model is flawed? It is not. बट एथिकली अगर हम अपने पैरामीटर्स पर राइट हैं एज एन ऑपरेशन वाइज, पी क्यों आपको पुश करने की कोशिश कर रहा है? बिकॉज तो उसे तो एग्जिट चाहिए, दैट्स वन. बट बिना पी, बिना इन्वेस्टमेंट के द काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वी नीड इन इंडिया, वो भी अचीव नहीं होगा. तो इट हैज़ टू बी हैव गुड शेक हैंड बिटवीन बोथ दी थिंग्स कि एथिकली राइट हो, हम राइटली ट्रीट कर रहे हो, और हमें इन्वेस्टमेंट भी चाहिए फॉर दैट मैटर. बट हमें अपने प्लेयर को भी कन्विंस करना होगा कि बॉस आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके ROI की तरफ मत देखिए. इफ आर ब्रांड इज परसीव्ड एथिकल, मॉरली राइट, तो हम ज़्यादा बेटर रेवेन्यूज करेंगे. आई कैन गिव यू मल्टीपल ऑफ एग्जाम्पल्स जहाँ पे आपने भी नोटिस किया होगा, जिनकी बिल्डिंग बहुत फ्लैशी नहीं है, जिनके लॉबीज़ बहुत 5 स्टार्स नहीं है या बाकी चीज़ें नहीं है, बहुत ही बेसिक से हॉस्पिटल हैं, लेकिन वहाँ फिर भी लाइन ख़त्म नहीं होती है. वाई? बिकॉज दैट्स द ट्रस्ट ऑफ द पेशेंट देयर. Yeah, but the trust has built over time. Yes, exactly. And I think my learning and my understanding of what you're saying is that private equity model is needed to bridge the gap between the requirement that we have for the healthcare, the creating an access versus the inability of just the government in providing that healthcare access, right? वो इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट से आनी चाहिए वो प्राइवेट इक्विटी से आ रही है.
प्राइवेट इक्विटी वालों का सोच ये है कि मैं पैसे लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका रिटर्न चाहिए। आई थिंक जहाँ पे मेरे को लगता है कि थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की ज़रूरत है एज टू द right kind of a private equity partner to get on board who is not looking at quick returns but is looking at building value and getting returns over a period of time, right? The soch of a private equity or getting the right private equity partner becomes imperative, right? Now another thing that you mentioned in one of your conversations was that एक अस्पताल है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर को लेके आना चाहते हैं बिकॉज उसके साथ उसकी प्रैक्टिस भी बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है, राइट? बिकॉज इफ आई एम अंडर द केयर ऑफ अ डॉक्टर वेर एवर ही मूव्स आई लाइक टू गो देयर, राइट? नाउ इसके अंदर हॉस्पिटल कम्युनिकेशन के अंदर he wants to shout about it. Now we have this particular doctor available at our healthcare facility, right? So they start building a brand around the doctor, right? But eventually it starts hitting them that listen, the doctor is becoming a bigger brand than the institution. Who owns the patient? You know, I'm talking in a very not so scrupulous manner, but you know, if I'm using the term that पेशेंट किसका है, अस्पताल का है या पेशेंट डॉक्टर का है? फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट आप अस्पताल में भी काम कर चुके हैं, वेर यू बीन ऑन द साइड ऑफ द हॉस्पिटल एंड यू आर ऑल्सो इन लास्ट 25 years मूव टूवर्ड्स अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पॉइंट, व्हाट डू यू थिंक इज द राइट बैलेंस बिटवीन द टू? कहाँ पे हॉस्पिटल एज अ ब्रांड बड़ा बनना चाहिए और कहाँ पे डॉक्टर एज अ ब्रांड बनना चाहिए, और उसका बैलेंस कैसे करेंगे ताकि दोनों खुश रहें एंड एट द एंड ऑफ द डे पेशेंट को बेनिफिट हो? राइट। मैं मिस्टर नरूला आपसे ये बोलना चाहूँगा कि मेरे को पहले हायर कौन कर रहा है कि डॉक्टर हायर कर रहा है कि मुझे हॉस्पिटल हायर कर रहा है, राइट? बट ऑन अ हमने बात करी थी कि ये वी आर टॉकिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग, तो ऑन अ लाइटर मोड आई हैव सेड दिस कि डॉक्टर या वो, बिकॉज आज की डेट में वी हैव पीपल, इन फैक्ट द इंडिविजुअल डॉक्टर कम टू अस एंड सेज कि मुझे ब्रांड की तरफ, इंडिविजुअल ब्रांड की तरफ मूव करना है, एज एन इंडिविजुअली, नॉट हॉस्पिटल, नॉट एनीथिंग एल्स, राइट? देर आर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्लेयर्स अपार्ट फ्रॉम हेल्थ केयर ऑल्सो, बिकॉज हॉस्पिटल ऑल्सो, medtech या rest of the players also, they also come and say कि we want to be, but what is the right mix if I say? तो for me, अगर हॉस्पिटल इस स्केल पर है कि वो मूव कर रहा है ऑन दी नेक्स्ट स्टेप, तो लेट्स से अगर जैसे आपने पहले बोला था कि डॉक्टर ड्रिवन हॉस्पिटल है जिनका एक यूनिट है फॉर दैट मैटर और एक हॉस्पिटल है वर्सेस टूवर्ड्स दी मल्टीपल प्लेयर, तो मल्टीपल प्लेयर के पास अपॉर्चुनिटीज़ और बेसिकली डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए बहुत ज़्यादा हैं कि वो एक यूनिट के चेयरमैन नहीं होंगे, 3 के होंगे, 5 के होंगे, 10 के होंगे या पूरा डिपार्टमेंट हेड करेंगे। चैलेंज हॉस्पिटल को तब आता है 2 लेवल्स में, एक एज यू राइटली सेड दे फील कि डॉक्टर बड़ा हो गया है, वन, द अनदर पॉइंट इज कि ये जैसे मैंने कन्वर्जन बोला कि ये डॉक्टर तो बड़े हैं बट इनका कन्वर्जन फ्रॉम ओपी टू आईपी उतना बड़ा नहीं है, तो उस टाइप में कॉर्पोरेट हॉस्पिटल एक दूसरा डॉक्टर और प्लेयर लाके खड़ा कर देता है सेम डिपार्टमेंट में, राइट? सो दैट कि ये सेटल आए या तो कन्वर्ट करे बेटर या मूव करे। वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हॉस्पिटल, आई फील इट हैज़ टू बी मिक्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आपके पास, अगर आप छोटे प्लेयर हैं, सिंगल हैं, और आप बहुत बड़े प्लेयर को, बड़े डॉक्टर को ले आए तो उसकी कॉस्ट हाई होगी आपके लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आज की डेट में 5 CR के भी डॉक्टर्स पैकेजेस पे हैं, राइट? आपने ले लिया और इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होती ये चीज़ें, बिकॉज हेल्थ केयर इज द सर्विस वेयर सर्विसेज नीड आने पे ही आपके पास मूव आएगा। वो ऐसा नहीं है कि आपने आज कैंपेन चलाया कल कोई आ जाएगा, नॉट लाइक दैट। देन यू कांट अफोर्ड दैट डॉक्टर, लेकिन आपने ले लिया तो आप क्या करेंगे? आप सस्टेन नहीं कर पाएंगे उसे। वेयर एज आई फील कि छोटा जो क्लिनिकली एक्सपर्ट आदमी है उनको राइटली क्लिनिकली आप चेक करके ऑन बोर्ड कीजिए।
एंड ये कम्युनिकेशन मार्केटिंग या आपकी डिपार्टमेंट का काम है कि उनके काम या उनकी लेगेसी को कम्युनिकेट करें. नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, क्या ये डॉक्टर इतना बड़े हो सकते हैं कि उनको सरपास कर दें? आई फील लाइक कि मेरी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में हमने बहुत नोइंगली ये कॉल लिया था कि डॉक्टर को हम इंडिविजुअल लेवल पे बड़ा नहीं करेंगे, हम ब्रांड को बड़ा करेंगे. बिकॉज वी फेल्ट कि इस सेगमेंट में अगर डॉक्टर मूव हुए तो रेवेन्यूज मूव हो जाएंगे फॉर दैट मैटर. बट वेयर एज ऐसे भी मैंने इंस्टीट्यूशंस के साथ काम किया है जो आज की डेट में टॉप 3 कैटेगरीज में है, टॉप 3 प्लेयर्स ऑफ द इंडिया हैं, राइट. एंड वहाँ की स्ट्रैटेजी डिफरेंट है थोड़ा. वहाँ आप डॉक्टर ऑन बोर्ड करते हो, आप सस्टेन कर सकते हो, लेकिन वो इंडिविजुअल पूरे उनसे बड़े नहीं हो पाते हैं बिकॉज क्योंकि दे हैव अ बिगर ऑडियंस, बिगर नेटवर्क. वहाँ आप राइटली प्ले करते हैं, वहाँ एक ही नहीं होते हैं, वहाँ दूसरे भी हैं, वहाँ तीसरे भी हैं, तो देर आर सोल्यूशन टू इट. बट अल्टीमेटली पेशेंट बेनिफिट करेगा तब जब राइट क्लिनिकल स्किल को हम रख पाएंगे अपने पास में. तो क्लिनिकल इज द की part of it. Then marketing and the rest of the thing can be the communication things for that. If I can take the liberty of sharing my Sure. thoughts on this, is that I feel, and you can correct me if, I feel that when you're building a brand for an institution, right, where the top doctor is working, that brand brings in or should be bringing in the promise of being at the right place. The value systems that an institution follows, that if you come to this particular hospital, you will be given priority, outcomes will be preferred, or this is the value system that we imbibe across everyone working here. Whereas building the brand for a doctor kinds of builds the promise in the minds or the confidence in the mind of a patient that I'm under the right care, right? कि मेरे पर ये डॉक्टर सियाना है, मैं इसके केयर में हूँ, so now I feel that I will be treated really, really well. So I think that balance between the two has to be created. And also, कई बारी हम दोनों को compete करने की कोशिश कर लेते हैं कि कौन बड़ा है, डॉक्टर ब्रांड बड़ा है या हॉस्पिटल बड़ा है. मेरे को लगता है कि अगर आप उस इंसान को, because everybody is looking at growth in their profession, if you were to build a brand and position them right, because क्या होता है कि कई बारी the chairman of a department becomes such a big brand, उसके नीचे के लोग जो उनसे हैं वो suffocated feel करते हैं कि यार मैं तो आगे बढ़ ही नहीं सकता यहाँ पे, तो मैं तो इनकी अम्ब्रेला के नीचे हूँ. But if you position them right and saying that, this guy is the chairman, he's mentoring a team and he's building his next level, then all the three become satisfied. And at the end of the day, do you agree that my thought is? Yes, I agree. कि ultimately what exactly they are doing to the patient, it matters. Correct. Because एक बड़े डॉक्टर, एनी फॉर दैट मैटर, वो सबको ट्रीट नहीं कर सकते हैं, राइट. यू नीड अ सेकेंड लाइन एंड अ थर्ड लाइन. इन फैक्ट आप एंटरप्रेन्योरशिप में देखिए, आप बाकी बिजनेसेस में देखिए, यू ऑलवेज ट्राई टू बिल्ड सेकेंड लाइन एंड थर्ड लाइन सो दैट यू कैन बी फ्री एंड यू कैन डू द मेंटोरशिप. व्हाट इज द जॉब ऑफ द सीनियर पर्सन बी. अच्छा, CEO का जॉब क्या है? CEO का जॉब इज टू टेक केयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वी आर हेडिंग टू. हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसके लिए, एंड द थर्ड, किस टाइप की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको एसेस करना एंड सेव करना. दिस इज द जॉब ऑफ द सीनियर चेयरमैन और अ डॉक्टर और डिपार्टमेंट, and the second line can take care of that. You're absolutely right. You're absolutely right, because at the end of the day, हर इंसान, डॉक्टर भी इंसान है. Yes. उसके 2 हाथ हैं, और हैं 24 घंटे. तो उतना ही कर सकता है जितना उसकी एबिलिटी है एज अ ह्यूमन बीइंग टू बी एबल टू डू इट. So the only way that he can grow or the practice can grow is when he's training more people like him, so that there are more number of hands that can serve more number of patients within those 24 hours. Right? I think so. That's the duty. I think. I can't take the name, to be very frank, but one of the hospitals we are working with them, and their
thought is that only. I am being discussing with the chairman regularly, and they have a good 9-10 hospitals the country, and he always talk about कि जब हमने लर्निंग की थी, जब हमने सीखा था, तब हमारे पास लिमिटेशंस थी चीज़ों की, बट नाउ द टेक्नोलॉजीज एज सच कि आज हमें लोगों को ट्रेन जो मैंने 30 ईयर्स में लर्न किया है, दैट कैन बी लर्न इन 2 ईयर्स. उनको 30 साल नहीं लगेंगे उस चीज़ को करने में, बिकॉज 3Ds आ गए हैं, रोबोटिक्स आ गए हैं, AI आ गया है एंड ऑल दैट. तो वो लर्निंग फास्ट हो जानी चाहिए. I want to shift this conversation to a little larger perspective. अभी तक जो हमारी बात चल रही है, it is limited to a hospital and maybe a diagnostic chain. But healthcare industry is huge. Yes. You have out of hospital care, senior care, medical equipment, insurance, pharma. I mean, it's only limited by your own imagination, yes. Right? And you can't, a marketing professional cannot be saying that, I'm just a person who's doing hospitals. Tomorrow, if you really want to grow, you could be moving within the healthcare ecosystem to another sector within the larger sector, right? So what do you think a maverick marketeer of today, how should he or she be thinking when it comes to healthcare marketing? Okay. So first I'll just clear this, that we are not serving only hospitals. No, we are not talking about just you. We are talking of a typical healthcare marketing maverick in this country. Yeah. How should they be growing? So it's a huge opportunity in healthcare space, and why we have dealt into it specifically to the healthcare. One, I come from that background. Of course, I understand a bit of it, spending my 25 years into that space. And the second thing, there's a huge opportunity. अगर मैं किसी भी इंडस्ट्री की बात करूं, the growth, if you see, it's a huge growth in terms of not only hospitals, but you talk about medtech, you talk about pharma, you talk about generic, you talk about homeopathic, you talk about Ayurvedic, you talk about in Ayurveda there are services, there are medicine, there are n number of things. Then there are private players, private equity players, insurance companies. It's a huge opportunity. One. Another point is medical tourism. इंडिया के पास जो मेडिकल टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी है, इट्स ए ह्यूज, राइट. आप किसी मार्केटर को अगर इस सेगमेंट में काम करना है या एक्सेल करना है, they want to be, they need to understand the market first. They need to understand it, they need to study about, there are special courses for that, there are special degrees for particularly, let's say MHA, and then there is the MBA in hospital marketing, and there are things into it nowadays. In fact, and not only bookish, but you have to be around with the senior people who have been into the, so when I started as in way back, तो मैंने इसी क्यूरियोसिटी के साथ एक्चुअली स्टार्ट किया था कि आई बीन ऑन दी समवेयर अदर विच इज़ द रिटेल काइंड ऑफ सेगमेंट, एंड देन आई थॉट कि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर में मार्केटिंग क्या होती है. दैट वाज माय क्यूरियोसिटी कि यार मतलब क्या है एग्जैक्टली, है ना. एंड देन आई रियलाइज एंड यू सी कि हेल्थ केयर का मार्केट गिरेगा नहीं इफ़ यू टॉक अबाउट जो बेसिक्स हैं, राइट. हर आदमी को खाना चाहिए, कपड़ा पहनने के लिए चाहिए, एजुकेशन चाहिए. किसी भी देश को, नेशन को ग्रो करना है, देयर आर टू बेसिक थिंग्स टू बी टेक केयर, विच इज़ एजुकेशन एंड हेल्थ. अगर आज आपकी, मेरी या किसी भी एक जेनरिक पर्सन की दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज सॉर्ट कर दे इन एनी ऑफ टर्म्स, आई एम नॉट सेइंग गवर्नमेंट सॉर्ट करे या कोई और करे, बट इफ़ यू सी मेरे बच्चों की एजुकेशन राइटली हो जाए और कभी इमरजेंसी पड़े हेल्थ केयर की तो वो टेक केयर हो जाए, तब तो आप दो मेजर पॉइंट से फ्री हो गए. ये नीड कभी जाएगी नहीं. तो मार्केटर के लिए बहुत स्कोप है, बिकॉज आज की डेट में इंडिविजुअल डॉक्टर अपने लिए कर रहे हैं, डॉक्टर्स छोड़िए इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं, सिंगल स्पेशलिटीज़ कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे इतना काम हो रहा है, AI कमिंग इनटू इट. इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन दैट स्पेस. बट आप राइट लोगों से सराउंडेड हो, क्योंकि मैंने बहुत देखा है कि बहुत ट्रेडिशनल वे में काम करते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे
लोग वॉकाथॉन करते हैं तो फिर हर ब्रांड वॉकाथॉन कर रहा है, कोई साइक्लोथॉन कर रहा है तो सब साइक्लोथॉन कर रहे हैं, कोई दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ द कस्टमर बिहेवियर इज चेंजिंग. If they understand customer behavior right, if they understand the pulse of the market, and that will come from the surrounded by the right mentors and the people. So theoretically एक knowledge है, and then you have the another knowledge which comes from the surroundings. And surrounding, sorry, but does not mean only physical surrounding. आज की डेट में being internet and everything is available, even though you are listening a podcast of Mr. Narula, you'll get a lot of information about it. You get other podcasts, YouTubes, lot of social media channels. This is also a surrounding. Very interesting, Baldev, when you're talking about surroundings, you know, there's a lot of digital marketing which is happening today. Right. You know, by every healthcare institution, there is a lot of digital marketing, digital content being put out. And there are people who are responding to it. Sometimes it is a backlash, sometimes it is comments and feedback coming in. But there are certain things which are very unique to the healthcare industry. जब हम रियली पेशेंट को देखते हैं, एक डॉक्टर के सामने जब पेशेंट होता है या एक अस्पताल में एक पेशेंट होता है, तो सिर्फ जो बोल रहा है उसको नहीं सुनते हैं, उसके एक्सप्रेशंस, उसके फियर उसकी आंखों में दिखाई देता है. एंड द डॉक्टर एंड द हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्डिंग टू दोज फियर्स, दोज अनसेड नीड्स. हाउ कैन वी ट्राई एंड गेट दिस फ्रॉम एनालिटिक्स in the digital world? How do we understand the fears of a patient in the digital world? So very, very interesting and good question. Why? I'm telling you. So just I said कि people are just following it. तो example, किसी ने वीडियो शूट करने स्टार्ट किए तो now everybody is behind it कि मुझे वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पे डालना है. For that matter people realize कि अच्छा मुझे आर्टिकल्स क्रिएट करने हैं, फॉर दैट मैटर फॉर SEO एंड फॉर अदर थिंग्स, वो उन्होंने बना के रेडी करके बस देने स्टार्ट कर दिए. बट क्या कस्टमर की नीड या पेशेंट उन चीज़ों को देखता, सुनता और समझता है क्या? ये अंडरस्टैंडिंग अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, राइट. एंड द अनदर लेवल टू इट, एज यू वर राइटली सेइंग, कि हमें पेशेंट के सिर्फ पेशेंट को बोलना नहीं समझना है, उसका पेन समझ में आना चाहिए. वो कैसे आएगा? तो जब पेशेंट कभी हो जाता है, आई प्रे टू द गॉड कि कभी ज़रूरत ना पड़े, बट लोगों को पड़ती है जब भी कभी. आई हैव बीन ऑन दो शूज़ एज वेल. माई मदर वॉज अ कैंसर पेशेंट, राइट. आई हैव सीन दैट जर्नी फॉर गुड ईयर्स, 12 ईयर्स की. आप खुद नहीं, आपकी पूरी सराउंडिंग इम्पैक्ट होती है. नॉट ओनली पेशेंट, आपकी फैमिली, आपके सपोर्टिव, रिलेटिव, फ्रेंड्स, फाइनेंशियली आप हिट करते हो, इमोशनली ड्रेन्ड होते हो, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट. उस एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड करके सोशल और डिजिटल इज जस्ट अ टूल अनदर, बट राइटली स्टोरी टेलिंग, राइट नरेटिव्स, राइटली कनेक्टिविटी. इफ मैं ऐसा कोई क्रिएटिव या ऐसा कोई कम्युनिकेशन क्रिएट करूं जो कि उस इंसान ने कभी अपनी इस साइकिल में एक्सपीरियंस ही नहीं किया है, तो वो रिलेट कर पाएगा क्या? नहीं, राइट. तो आपको वो समझना बहुत ज़रूरी है. देन यू कैन राइटली कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा वो किस पेन से आ रहा है. सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ डिजिटल एंड यू नो, मेरे को कभी लगता था एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि अगर डिजिटल में हेल्थ केयर इंडस्ट्री का कुछ है तो वो प्लेटफॉर्म सिर्फ लिंक्डइन है, वो भी प्रोफेशनल नेटवर्क के लिए. बट टू माई सरप्राइज एंड प्लेजेंट सरप्राइज, people have figured out innovative ways of using platforms like Instagram etc. for healthcare communication as well. अब जब हम Instagram की बात करते हैं, we have started seeing influencers emerging, right? And it is a very confusing state because we have a few doctors who have broken the mold of a typical cliched कि डॉक्टर एक straight faced, serious, grey haired होगा, versus today we have a dentist who's known as a singing dentist, we have a doctor who's dancing and everything.
but figured out innovative ways of coming and creating a presence on the Instagram. In this whole world of influencing, how do you see healthcare and what is it that we need to take care of? Because I see today that there are more people on internet talking of healthcare without having been qualified to speak about it. Self-acclaimed, self-entitled people who are talking of healthcare. So what is it that we need to do? What is it that the industry needs to do? What is it that the government needs to come in and play a role? So I'll go back to first of your where we started, the digital. आपने कभी सोचा नहीं था कि लिंक्डइन के अलावा भी कोई और प्लेटफॉर्म होगा, राइट? देयर आर स्टडीज वेयर जो हमारी पॉपुलेशन है उसका एक बहुत बड़ा सेगमेंट सिर्फ डिजिटली अवेलेबल है आज की डेट में. पीपल हैव लेफ्ट कि न्यूज़पेपर्स, बाकी जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट कंज्यूमिंग ऑफ द कंटेंट था वो छूटा है. और वो क्यों छूटा है? उसके 2-3 मेजर रीजंस हैं. एक, हमारी पॉपुलेशन जो अब जेनजी या उस कैटेगरी में या यंग मिलेनियल्स वाली कैटेगरी है, वो कैटेगरी वो है जिस कैटेगरी ने इंटरनेट, स्मार्टफोन एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स देखे हैं. आपके और मेरे टाइम में या मैंने भी अपने टाइम में फ़ोन भी नहीं थे एग्जैक्टली, है ना? वी आर फ्रॉम दैट एरा की फ़ोन भी नहीं थे. फ्रॉम नो फोन टू एवरीथिंग डिजिटली, इट्स चेंज. अगर कंजम्पशन चेंज हो गई है तो आपके पैटर्न भी चेंज होंगे. सेकेंड थिंग, देयर इज़ अनदर स्टडी विच इज़ थोड़ा सा मेरे लिए मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए, बट इन मेट्रोज एंड द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री मोर देन 4 आवर्स एवरेजली सोशल मीडिया पे लोग स्पेंड कर रहे हैं. एंड टू अ सम एक्सटेंड अगर मैं उसमें डिजिटली भी इन्वॉल्व करूँ, विच इंक्लूड्स योर व्हाट्सएप एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग्स, then it goes to a 6 hours and 7 hours. जब मैं 6 and 7 hours की बात कर रहा हूँ और कोई इंसान उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आपका कम्युनिकेशन भी वहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट. देन उस टूल की वर्किंग क्या है? वो शॉर्ट फॉर्मेट पे काम करता है, वो लॉन्ग फॉर्मेट पे काम करता है, वो B2B पे काम करता है, वो D2C पे काम करता है. दैट मेक्स द डिफरेंस. इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब बहुत सारी पॉकेट्स में इंस्टाग्राम बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी पॉकेट्स में फेसबुक बहुत पॉपुलर है, बहुत सारी. आज ही हम लोग किसी एक मीटिंग में थे एंड वी वर डिस्कसिंग कि अच्छा इस मार्केट में तो हम इंस्टा करें, एंड द नंबर्स वो सेइंग कि यूट्यूब बहुत स्ट्रांग है वहाँ पे, राइट? तो यूट्यूब बहुत स्ट्रांग था जब जहाँ पे आप कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करोगे. बट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्लेटफॉर्म हैज़ टू बी डन, बिकॉज एक टाइम पे जब टीवी, जब न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ था तब उसके हिसाब से मूव हो रही थी चीज़ें, बट अभी इसके हिसाब से मूव हो रहे हैं. देन कमिंग टू योर सेकेंड पॉइंट विच इज़ कि आज की डेट में इन्फ्लुएंसर्स है, और क्या इन्फ्लुएंसर्स हेल्थ केयर में यूटिलाइज हो रहे हैं या होने चाहिए, या बहुत सारे लोग बोल रहे हैं. माई आंसर टू दैट इज इन्फ्लुएंसर कैन बी यूज्ड इन हेल्थ केयर, नो डाउट अबाउट इट. उनको राइटली कम्युनिकेट करना चाहिए. द पॉइंट इज क्या वो हेल्थ केयर पे बात कर सकते हैं? तो 2 पैरामीटर्स हो सकते हैं. या तो वो क्वालिफाइड है विच इज़ MBBS और समबडी जो बात करे, एक्चुअली तो उन्हीं को बात करना चाहिए जेन्युइनली, बिकॉज देयर इज अ लाइफ इन्वॉल्व हेयर. तो यू कांट टेक अ जस्ट थिंग, बट येस. एंड द अदर पॉइंट ऑफ इट आई वुड से कि क्या बाकी लोग भी इसके अराउंड काम कर सकते हैं हेल्थ केयर के अराउंड? ऑल्दो टू माई अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट इज मेकिंग पॉलिसी ऑन दैट कि ऑलरेडी जो मेडिकली होंगे एंड ऑल दैट होंगे, शायद उनके लिए एक पॉलिसी क्रिएट हो रही है कि फिर वही सिर्फ हेल्थ केयर पे बात कर पाएंगे एज एन इन्फ्लुएंसर. बट टू दी अनदर साइड कि उनका क्या होगा जो कि हेल्थ केयर में इन्फ्लुएंसिंग करते हैं या बात करते हैं? आई वुड से दे कैन टॉक, बट इट हैज़ टू बी रिसर्च बैक्ड अप कॉन्टेंट. तो लेट्स से इफ आई एम सेइंग कि एग्जाम्पल कि एग डेली आपको खाना चाहिए, देर हैज़ टू बी सब्सटेंस एंड रिसर्च बिहाइंड इट जो वो क्लेम करे या उसको रेफरेंस पॉइंट दे, विच क्रिएट कि ये जो डेटा, ये जो कम्युनिकेशन, ये जो मैं बात बोल रहा हूँ, इसका रेफरेंस पॉइंट ये है. बिकॉज इफ द रेफरेंस पॉइंट एंड रिसर्च थिंग्स आर अवेलेबल,
journals are available and you are communicating to the people, that is okay, I feel. Because you are not giving any wrong information. Wrong information nahi pass honi chahiye, that's the main objective of it. I think there are opportunities as well as risks of social handles being used for healthcare. I think the opportunity is that today every hospital, every healthcare institution needs to be hyper local. Yeah. Right? So the ability to be locally marketing towards a very small radius, that I think digital platforms provide. Right? Second is that today the doctors, individuals have an opportunity to go have a voice for themselves and have an opinion of what needs to happen. So that's a very big opportunity which is provided. Right. You don't need top marketeers to come and help them build their brand. The challenge is that the institution suddenly has lost control over what their individual employees are doing on social media. So I think there has to be a balance that needs to be created. As you said, hyper local. I feel again this is the understanding, हर market, हर healthcare player के हिसाब से it changes. Correct. Hyper local, state level, national level और इंटरनेशनल लेवल. तो लेट्स से अगर मैं मदर एंड चाइल्ड की बात करूं सेगमेंट वाइज, तो वो 5 किलोमीटर के रेडियस पे काम करता है या 6 किलोमीटर के रेडियस पे काम करता है. बट इफ आई टॉक अबाउट द जनरल सर्जरीज विच गोज ऑन टू 10 किलोमीटर्स एंड अ 15 किलोमीटर रेडियस ऑल्सो. But when I talk about super specialties where like organ transplant, oncology and all that, तो आप 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर पे भी ऑपरेट करते हैं. मतलब दिल्ली में आप देखेंगे कि गुवाहाटी से भी पेशेंट है, ईस्टर्न यूपी से भी पेशेंट है. Or for that matter, even fertility. People, I've seen people travel from northeast to... Exactly. And when you have a tertiary care and a quarterly care kind of a setup, so it's a very big opportunity for a medical tourism. तो we need to understand कि कब हाइपर लोकल होना है, कब सिटी बेस्ड होना है, कब स्टेट बेस्ड होना है और कब नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ड. This amplifies the point that the digital has the ability to segment and target the audience based on who they want to reach out to. एक जो हम बात कर रहे थे, we began the conversation with saying that how has the healthcare and healthcare communications evolved in the last 25 years. When we have seen the communication evolve, अभी बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जो 25 साल पहले नहीं थी. डिजिटल, द वे वी सी इट वाज़न्ट देयर, राइट. हेल्थ केयर मार्केटिंग वॉज सीन एज कि कितना बड़ा गुनाह कर दिया आपने. टू टुडे वी आर सेइंग दैट इट इज़ द वे टू शेयर नॉलेज, राइट. बट आई डोंट थिंक द कंट्रोल over healthcare marketing has evolved, right? For example, code of ethics जो पहले थे वही अभी हैं. डिजिटल मीडिया इसलिए भी सक्सीड हो गया है क्योंकि वो ग्रे एरिया है. इट इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ एथिक्स, right? I could have a website where I'm talking about sharing information about how to reach my clinic or what facilities I have available, and I can get away with saying that it's not marketing. What do you think needs to happen to have the control over marketing also evolve and be relevant to today's marketing techniques in the healthcare industry? Okay. So I'll give you an example. I started in fact, with my own hand, I have distributed the leaflets also. उस टाइम पे वो नीड थी कि सुबह 4 बजे न्यूज़पेपर में आपके इश्तिहार के बीच में आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए, राइट. बिकॉज वो उस टाइम पे कंज्यूम होता था. एक टाइम आया जब थोड़े एक नेक्स्ट लेवल पे रेडियो कैंपेन्स स्टार्ट हुए. रेडियो आया, टीवी आया, न्यूज़पेपर आया. रेडियो कैंपेन्स जब स्टार्ट हुए तो आई नो वेरी इंटरेस्टिंगली, मतलब अभी अगर आज मैं आपके यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट एक डिस्क्लोज करूँ तो बड़ा डिफरेंट है. तो आई डिस्कस्ड विद, जब आई वॉज इन जॉब तो आई आस्क्ड कि रेडियो पे कैंपेन हो रहा था और आई आस्क्ड देम कि रेडियो के कैंपेन का मुझे पहला ऐड चाहिए.
तो दी अदर मार्केटिंग गाय सेड, विच इज़ अ रेडियो गाय, सर वाई यू आर लुकिंग फॉर अ फर्स्ट एड, क्यों पहला ऐड ही चाहिए आपका? उन दिनों नया नया माउंट स्टेयरिंग पे कंट्रोल आया था गाड़ी में चलते हुए, एंड आई वॉज दैट टाइम ऑल्सो आई वॉज वेरी प्रिसाइज अबाउट द डेटाज एंड कॉन्टेंट. बोला योर 17% ऑफ द पॉपुलेशन लिसन रेडियो इन कार्स, और कार में पर्टिकुलरली मुझे लगता है वही इफेक्टिव लिसनर है. तो मुझे पहला ऐड चाहिए, क्योंकि बाय द टाइम ये एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक मूव होता है तो लोग चेंज कर देते हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ ऐड सुनाई ही नहीं देगा. इन दोज टाइम द रेडियो गाय आज मी कि सर ये चीज़ किसी और को मत बोलना, अदरवाइज एवरी कस्टमर इफ आस्क मी कि मुझे फर्स्ट चाहिए तो मैं कैसे दूंगा, है ना. एंड दैट टाइम आई टोल्ड हिम कि बॉस मुझे किसी और का नहीं पता है, बट मेरे ब्रांड के लिए मुझे फर्स्ट पे ही चाहिए. एंड दैट्स हाउ आई से कि आई एम नॉट दी अलोन, बट आई कॉन्ट्रीब्यूटेड टू अ ब्रांड जो 50 लाख रुपीज़ के रेवेन्यू से और 500 करोड़ की वैल्यूएशन तक गया. तो आपकी छोटे छोटे स्टेप्स, आपकी छोटी छोटी रिसर्च अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग प्लेज अ रोल टू इट. तो नाउ द डिजिटल स्पेस इज कमिंग अप. डिजिटल में भी आई करेक्टली रिमेंबर 8 years बैक आई वॉज गाइडिंग टू द हॉस्पिटल कि ये लोग हैं, इनके साथ आप इन्फ्लुएंसिंग का वो करो, मतलब कि ये लोग हैं, इनके साथ कुछ कंटेंट डेवलप करो. जैसे कि नो, कोई नहीं मांगता. आज मेरे पास आई वुड से कि 30+ players हैं इन द हॉस्पिटल कैटेगरी, एंड फॉर एवरीबडी आई एम डूइंग अ इन्फ्लुएंसर कैंपेन. मतलब महीने के 2 कैंपेन आप इन्फ्लुएंसर कैंपेन करो, इट इज़ 60-70 कैंपेन्स ओनली इन्फ्लुएंसर. तो नाउ यू अंडरस्टैंड. तो आई एम सेइंग कि आप जस्ट फॉलोअर मत बनो, आप कस्टमर के बिहेवियर को स्टडी करो, पैटर्न्स को स्टडी करो, डेटा अंडरस्टैंड करो, एंड देन टेक इट फॉरवर्ड. तो वो टूल्स हो जाते हैं फिर खाली. Baldev ji, my last question to you for this conversation is, आप मार्केटिंग हेड रह चुके हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग व्हाट आई यूज्ड. अब आप यू आर सेलिंग टू द मार्केटर्स, राइट? हाउ हैव यू सीन द रोल ऑफ अ हॉस्पिटल मार्केटर, द CMO, change over a period of time, and what are the skills that you think make a great CMO of a hospital? Chief Marketing Officer, not the medical officer. I would say in this, there are 2-3 parameters not for the marketers only. In fact, जो हॉस्पिटल के CEOs हैं या हॉस्पिटल के प्रमोटर्स हैं, इनफैक्ट दे आर ऑल्सो अ मार्केटर काइंड ऑफ अ थिंग. तो मुझे मेरा पॉइंट थोड़ा सा यहाँ मैं उसको अलग साइड पे जाऊँगा. सम टाइम व्हाट हैपेंड व्हेन यू बिकम अ CEO, व्हेन यू बिकम अ प्रमोटर्स डायरेक्टर प्रमोट, आई वुड से मैंने बहुत जगह हम लोग जाते हैं और जब हम कोई नई चीज़ किसी को पिच करते हैं या राइटली बताते हैं, सम टाइम तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ही हमें उसको आगे नहीं ले जाने देता है. मतलब दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइड ऑफ इट, बिकॉज दे फील कि ये तो थ्रेट है हमारे लिए. Whereas I want to say to the promoters, directors, to the people, you should meet those people also जो कि एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, सेमिनार्स होते हैं. यू शुड बी पार्ट ऑफ व्हाट मार्केट चेंजेस आर हैपनिंग इन द वर्ल्ड. तो नॉट फॉर द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर बट द प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, एंड यू हैव टू मीट दोज पीपल, बिकॉज लाइक MR डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसे लर्निंग भी देते हैं, नॉट सेलिंग प्रोडक्ट ओनली, बट वो लर्निंग भी देते हैं कि नई चीज़ें क्या हो रही हैं, बिकॉज प्रमोटर या डॉक्टर अपने स्पेस में बिजी है तो वो नहीं होता है. तो दिस इज़ द वन गैप. सेकेंड, फॉर अ मार्केटर्स को आई फील, मैंने बहुत सारे मार्केटर्स, मतलब मेरे अपने ही स्पेस में मैंने 300-400 पीपल यूज टू बी अंडर मी एज एन सेल्स मार्केटिंग गाइज एंड एवरीथिंग. आई ऑलवेज सेड कि मेरे पास आप प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ आओ. मतलब थिंक फर्स्ट rather than copying paste somebody, read about it, data understand करो. In fact, I don't know अभी भी कितने लोग करते हैं, हम बहुत जगह जाते हैं नहीं कर पाते. Those time I used to map the geographies also, कि किस geography से मेरा patient ज़्यादा move कर रहा है, and I used to understand कि क्यों move कर रहा है, what is the reason. वहाँ speciality नहीं है, वहाँ service नहीं है,
वहाँ का डॉक्टर बिहेवियर चेंज है, या मेरी टीम ज़्यादा बेटर कम्युनिकेट कर रही है वहाँ पर, एंड आई यूज टू बी ऑन ग्राउंड एंड चेकिंग दैम. तो फॉर अ मार्केटर इट डज नॉट मीन just to communicate, just to understand, but you sit with the customer, you read the feedbacks, है ना, you understand those also, not कि डिजिटल आज आ गया है तो मैं डिजिटल पे सब कुछ वही करूँगा, मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करूँगा, मैं कैंपेन चलाऊँगा, मैं ये करूँगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द रियल कस्टमर ऑल्सो, कस्टमर का बिहेवियर. अभी जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डिजिटल पे ईदर यू स्टेज फॉर इंफॉर्मेशन और द एंटरटेनमेंट, आप किसी तीसरी चीज़ के लिए नहीं रुकेंगे, राइट. या तो आपको अगर हमारे वाले स्केल पे हैं तो पीपल वांट टू बी कि क्या मैंने वैल्यू ली मुझे कुछ इसमें से, इस कंटेंट में से, राइट. या एंटरटेनिंग है, मैं बहुत ऑक्यूपाइड हो गया हूँ, थोड़ा चिल मारना है तो मैं आधे घंटे के लिए 15 मिनट के लिए रील्स देखता हूँ, थोड़ा फन होगा, एंटरटेनिंग. बट इफ़ यू कैन कंबाइंड योर इन्फॉर्मेशन विद द एंटरटेनमेंट स्टाइल विच इज़ कॉल्ड द इंफोटेनमेंट, which makes a lot of difference to the people. You can communicate your thing rightly and effective manner, then people will engage. You need to create a content जो खुद ब खुद वायरल हो, जो वैल्यू दे. You're talking of something which is very interesting. In fact, while I said it was my last question, I think I will now ask my last question. Yeah. ऐसी क्या 4 या 5 चीज़ें हैं जो आज हर अस्पताल को करनी चाहिए to not only build their brand but to create their presence, and what are the 2 or 3 things that every doctor must do to be able to create his or her presence, to be able to reach out to a larger set of people that they can serve? So first I'll answer on the doctor. Okay. Doctor have to have on the digital, because I said ना, आपकी ऑडियंस वहीं है, लोग 6 घंटे उस प्लेटफॉर्म पर हैं. बाय इन एनी विच वे मैनर यू हैव टू बी ऑन द डिजिटल फ्रंट. आई एम नॉट सेइंग द सोशल फ्रंट ओनली, डिजिटल फ्रंट कैन बी इन लॉट ऑफ मैनर्स. आपकी वेबसाइट है, आपके सोशल हैंडल्स हैं, आपकी बाकी सारे. अब आई अंडरस्टैंड आप खुद नहीं कर पाएंगे शायद, बट अगर आप अपने टाइम का आधा घंटा भी 1 घंटा भी निकाल के उस प्लेटफॉर्म को दे पाएंगे तो योर रीच विल बिकम अ मेजर. द सेकेंड, फॉर डॉक्टर, you should not be selling your services. You should be communicating how the patient and customer can be benefited out of it. If this is value in हमारे, आज भी आप हम देखेंगे, हम सर्जरी से डरते हैं, हम चाहते हैं कि सर्जरी के बिना सब कुछ हो जाए, राइट. इफ एनी इंफॉर्मेशन कैन सॉल्व दिस चैलेंज टू देम कि हम सर्जरी से बिना जाएं, उनको ठीक कर पाएं या उनके लिए वो वैल्यू क्रिएट कर पाएं, दे विल कंज्यूम दैट कंटेंट एंड सेंड इट टू द फर्दर पीपल. तो दैट इज सेकेंड फॉर द डॉक्टर. थर्ड, दे हैव टू हैव द पॉइंट कि उनकी सेकेंड लाइन कोई मजबूत होनी चाहिए, बिकॉज ही विल बी बिजी इन OT एंड OPD डूइंग ऑल दीज थिंग्स. यू नीड टू क्रिएट योर सेकेंड लाइन, जो कि सेकेंड लाइन उस चीज़ को टेक फॉरवर्ड कर सके एंड आपका हैंड बन सके, सो दैट इट मेक्स अ सेंस फॉर हिम विद द मिनिमम बजट. एंड यहीं पे अपॉर्चुनिटी जो आपने पूछी थी कि हेल्थ केयर मार्केटर्स के लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, नाउ यू कैन सी कितने डॉक्टर्स हैं हमारी कंट्री में, कितने लोग हैं, कितने, उन सबको रिक्वायरमेंट होने वाली है इस चीज़ की. एज फार एज हॉस्पिटल इज कंसर्न, हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू पे आई फील पीपल थिंक, बहुत बड़ी टर्म पे है कि PR दे थिंक कि ओनली PR इज खबर छप गई आपकी. नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट. इट इज़ अबाउट थॉट लीडरशिप, हाउ पीपल परसीव यू, राइट. आपकी नॉलेज उनके काम आ रही है या नहीं आ रही है. तो यू हैव टू बी थॉट लीडर इन योर ओन कैटेगरी. हॉस्पिटल को उस कैटेगरी में मूव करने की रिक्वायरमेंट होती है. सेकेंड थिंग इज PR को वो बेसिक PR ना समझे, दैट हैज़ टू बी कम्युनिकेशन एंगल, उसको यूज़ करें. हॉस्पिटल के लिए आप फीडबैक राइटली ऑब्जर्व करें, डेटा राइटली कैप्चर करें, क्योंकि डेटा ही आपको एक नेक्स्ट लेवल ऑफ स्ट्रैटेजी देगा. हम बहुत जगह जाते हैं, उनके पास डेटा होता ही नहीं है. वी आस्क देम कि कौन सी ज्योग्राफी एक्ट कर रही है, रेफरल मिक्स क्या है आपका, केस मिक्स प्रॉपरली क्या हो रहा है. दे डोंट नो दैट एक्चुअली, राइट. इफ़ यू डोंट नो द डेटा, एंड द न्यू गोल्ड इज द नॉट ऑयल, इट्स अ डेटा, बट डेटा आपका राइटली कैप्चर हो रहा है नहीं हो रहा है, आप राइटली उसके ऊपर आगे कर पा रहे, बिकॉज दैट विल गिव यू द वे आउट कि मैं टेक्नोलॉजी कौन सी बाय करूँ, मैं कैसी बाय करूँ.
मैं कौन सी जोग्राफी में मेरे सेटेलाइट क्लिनिक्स ओपन करूँ, राइट. तो दिस इज़ वेयर इट इज़. एंड मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिर्फ कैंपेन्स चला देना, सोशल पे सिर्फ कोई भी रैंडम कंटेंट डाल देना विल नॉट सॉल्व योर पर्पस. यू नीड टू एसेस कि ये कंटेंट वैल्यू ब्रिंग कर रहा है नहीं कर रहा है उस चीज़ के लिए. आज की डेट में बहुत भीड़ है और आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि पॉडकास्ट तो कर ही दो नरूला साहब हम लोगों का, राइट. बट वो पॉडकास्ट से क्या उनको वैल्यू आ रही है? अगर वैल्यू आ रही है देन इट मेक्स सेंस. अगर वैल्यू नहीं आ रही है तो आपका कोई भी कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ राइट नहीं है. Absolutely. Baldev ji, thank you so much for this conversation. What you just spoke kind of reinforces the fact that healthcare is not about just treatment. It is about building trust. It is about communicating what the patient, communicating something that makes the patient comfortable. It's about building a culture of empathy. It is about shaping stories that kind of create the comfort that the patient requires. Thank you so much for your time, and thank you so much for this conversation.